Now we will discuss the rules to write the IPAC name of coordination compound or complexes. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम लिखने के लिए यूज किए जाते हैं. सो लिसन, फर्स्ट रूल इज ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ आईपीएसी name of cation is always written before the name of anion. It means जब कभी भी हम आईपीएसी नेम को लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तो हमेशा आईपीएसी नेम लिखने पर भी हमारा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है और एनायन का नेम बाद में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. So IPAC name of K4FeCN6. We all know that in case of K4FeCN6, this coordination compound will give two ions. First one is K plus ion and second one is FeCN6 4 minus ion. We all know that K plus is cation and FeCN6 4 minus ion is anion. So listen, during writing the IPAC name of this coordination compound, you can see potassium ion, the name of K plus ion means cation, that is potassium, is written first. It means during writing of IPAC name of any coordination compound, the name of cation should be written before the name of anion. It means किसी भी coordination compound के केस में cation का नेम हमेशा पहले लिखा जाता है और anion का नेम हमेशा बाद में लिखा जाता है. So this is potassium ion. So we write potassium. Then we write the name of complex anion. अब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स एनायन का नेम लिखेंगे, उसका अलग तरीका है. सो लिसन, इट्स नेम विल बी पोटेशियम 6 साइनाइडो. 6 साइनाइडो मीन्स हेक्सा साइनाइडो एंड Fe मीन्स आयरन. और आयरन जब Fe हमारा एनायन पर आता है तो वो हो जाता है फेरेट. और उसके बाद Fe की हम निकाल के लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में. सो नेम विल बी पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2. 2 is the oxidation state of iron. Now listen. So what is the first rule of IPAC? The first rule of IPAC is the name of cation will be written before the name of anion. It means जो cation है उसका नेम पहले लिखा जाएगा और anion का नेम बाद में लिखा जाएगा. So this is the first rule of IPAC to write the IPAC name of coordination compound. Now second rule is IPAC name of complex is written in small letters only. So you can see IPAC name of any coordination compound is always written in small letters. आप देख सकते हैं जो IPAC नेम लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा. दिस P is small. You can also make in this manner. So listen, this IPAC name is written in small letters only. There is no use of any capital letter. Now, space is given between the name of cation and anion. It means जो हमारा cation है मीन्स पोटेशियम आयन और जो हमारा एनायन है मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन, इन दोनों के नेम के बीच में हम क्या देते हैं, सम स्पेस. इट मीन्स हम यहाँ पर थोड़ा सा बीच में क्या देंगे, कुछ स्पेस देंगे. एंड लिसन, द नेम ऑफ complex ion is always written as one word. It means जब कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन का हम नेम लिखते हैं
For example, if we write the name of FeCN6 4 minus ion, so listen, its name will be hexacyanidopherate 2 and it is written as one word. It means किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का नेम, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो चाहे कॉम्प्लेक्स एनायन हो, उस कॉम्प्लेक्स आयन का नेम हमेशा एक वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं एंड देयर विल बी नो एनी स्पेस बिटवीन लेटर्स, और उनके लेटर्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. Now we will discuss third rule. During writing the IPAC name of complex ion, name of ligand should be written before the name of central metal. It means किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम कॉम्प्लेक्स आयन का आईपीएसी नेम लिखते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक K4FeCN6, and when we write the IPAC name of complex ion into this compound, then listen, the name of ligand should be written first before the name of central metal. It means जब कभी भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते हैं तो हमेशा लिगैंड, फॉर एग्जांपल यहां लिगैंड कौन है, CN, दिस इज साइनाइड लिगैंड, और ये साइनाइड लिगैंड जब कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो आईपीएसी नेम में इसको लिखते हैं साइनाइडो. क्या लिखते हैं, साइनाइडो. तो ये साइनाइडो को हम पहले लिखेंगे. कितने साइनाइडो हैं, 6 मीन्स हेक्सा. सो हेक्सा साइनाइडो, इट मीन्स लिगैंड हमारा पहले आता है, लिगैंड का नेम पहले लिखा जाएगा. और फिर फेरेट मीन्स आयरन, आयरन के लिए क्या आया है, फेरेट. और फिर हमारा किसका नाम आता है, सेंट्रल मेटल का. और उसके बाद हमारी क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किसमें, रोमन नंबर में. ऑक्सीडेशन नंबर किसमें आएगी, रोमन नंबर में, रोमन नंबर में. और इसे किसमें शो करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में. ऑक्सीडेशन नंबर इज शोन इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेमिंग ऑफ मेटल. इट मींस मेटल का नेम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं. जैसे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe जो है अपनी +2 स्टेट में है, तो इस +2 स्टेट को हम सेंट्रल मेटल के नेम लिखने के बाद किसमें लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन नंबर में लिखेंगे. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ रूल. ड्यूरिंग राइटिंग IPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल is written in Roman numbers, is written in Roman numbers in small bracket or parenthesis. We have discussed it. It means ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग सेंट्रल मेटल के बाद, सेंट्रल मेटल की नेमिंग करने के बाद रोमन नंबर में, स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में लिखते हैं. So listen, for example, in this manner, अगर 1 ऑक्सीडेशन नंबर है +1 तो हम रोमन में +1 इस तरह से लिखेंगे. अगर किसी एलिमेंट की कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है सेंट्रल मेटल की वो +2 है तो इस तरह से लिखेंगे. अगर 0 है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखेंगे. सो यू कैन सी. नाउ लिसन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टॉक सिस्टम. और ऑक्सीडेशन नंबर के इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, स्टॉक सिस्टम. इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक सिस्टम. नाउ लिसन, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगैंड एंडिंग विद IDE. इट मींस ऐसे एनायनिक लिगैंड जो कि एंड होते हैं किससे, IDE से. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन में आते हैं, or we can say when these type of anionic ligand comes in coordination sphere, जब ये आयन हमारे एनायनिक लिगैंड कहां आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. फॉर एग्जांपल साइनाइड, ये हमारा कौन सा लिगैंड है, साइनाइड. तो साइनाइड को साइनाइड नहीं लिखा जाएगा, साइनाइड को हम
साइनाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइनाइडो। इट मीन्स जब कोई ऐसा लिगेंड जिसके लास्ट में IDE आता है और वो कहां पर आए, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आए या कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट का IDE है उसे रिप्लेस कर देते हैं IDO में। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो साइनाइड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? साइनाइडो में। किसमें चेंज होगा? साइनाइडो में। सो नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगैंड एंडिंग विद IDE changes with IDO. So listen, when it comes in coordination sphere, when it come in coordination sphere, it means जब ये एनायनिक लिगैंड कहां पर आए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आए, तो इसकी नेमिंग करते टाइम हम लोग IDE को रिप्लेस कर देंगे IDO से। सो सिमिलरली लिसन, देयर आर सम एग्जाम्पल्स। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो लिसन, फर्स्ट वन इज क्लोराइड। पहला एग्जाम्पल है हमारा क्लोराइड। व्हाट इज क्लोराइड? वी ऑल नो दैट क्लोराइड इज Cl minus ion. Chloride is Cl minus ion. So listen, so the name of this anionic ligand, chloride is Cl minus ion. So the name of ligand when it comes in coordination sphere, it means जब ये कहां पर आए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा क्लोराइड लिगैंड, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? क्लोराइड ना लिख के क्या लिख देंगे? इस IDE को रिप्लेस करेंगे किससे? IDO से। इट मींस क्लोराइड बन जाएगा क्लोराइडो। इसी तरह ब्रोमाइड, फार्मूला Br माइनस और इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। इसी तरह फ्लोराइड, फ्लोराइडो, फार्मूला F माइनस। आयोडाइड, आयोडाइडो, I माइनस। सो लिसन, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ IPAC, इट मींस IPAC की जो नई कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो और आयोडाइडो लिखते हैं। But according to old convention of IPAC, chlorido will be written as chloro. It means अगर IPAC की old convention क्या कहती है कि जो क्लोराइडो था वो पहले क्या बोला जाता था? क्लोरो। ब्रोमाइडो क्या बोला जाता था? ब्रोमो। फ्लोराइडो क्या बोला जाता था? फ्लोरो। आयोडाइडो क्या बोला जाता था? आयोडो। सो लिसन, बट अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ IPAC, लेकिन IPAC की जो नई कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है? IPAC नेम में क्लोराइड को लिखना है क्लोराइडो, ब्रोमाइड को लिखना है ब्रोमाइडो, फ्लोराइड को लिखना है फ्लोराइडो, आयोडाइड को लिखना है आयोडाइडो। नाउ लिसन, नाउ सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स। इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। For example, O2, for example, Cn minus. Cn minus means cyanide, and its name will be cyanido. और पहले क्या लिखा जाता था? साइनो। ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखा जाता था? साइनो। सिमिलरली ऑक्साइड means O2 minus, so its name will be oxido. और पहले क्या लिखा जाता था? ऑक्सो। सो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड। और भी हम क्या लिख सकते हैं? और भी अदर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड मीन्स OH माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो
हाइड्रोक्साइडो, और पहले क्या लिखा जाता था, हाइड्रोक्सो। बट लिसन, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, नेम IPAC name is considered. So listen, hydroxide is written as hydroxido. Now similarly we can take another example, nitride. Nitride भी किससे खत्म होता है, IDE से. Its formula is N3 minus and its name will be nitrido. इसका नेम क्या होगा, nitrido. Similarly we can take another example, sulfide. Sulfide means S2 minus. It is similar to oxide. इसका नेम क्या होगा, सल्फाइडो. Now we will discuss the name of some cationic ligand ending with ATE. अब हम लोग कुछ Now we will discuss the name of some anionic ligand ending with ATE. अब हम लोग कुछ ऐसे एनायनिक लिगैंड डिस्कस करेंगे जो कि खत्म होते हैं ATE से, एंडिंग विद ATE. तो उनका IPAC नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम लोग ATE को रिप्लेस कर देते हैं ATO से. ATO से. फॉर एग्जाम्पल, listen, we can take for example carbonate. Carbonate, its formula is CO3 2 minus. जो कार्बोनेट है इसका फार्मूला होता है CO3 2 माइनस. तो ये लिगैंड हमारा एनायनिक लिगैंड है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, और ये खत्म होता है ATE से. तो कार्बोनेट अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा तो इसकी नेमिंग करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, ATE को रिप्लेस कर देंगे ATO से. इट मीन्स कार्बोनेट बन जाएगा कार्बोनेटो. क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो. सिमिलरली सल्फेट मीन्स सल्फेट, द फार्मूला ऑफ सल्फेट इज SO4 2 minus ion. SO4 2 minus ion. So sulfate will become sulfato. Sulfate क्या बन जाएगा, sulfato. Now nitrate. Next example is nitrate. Nitrate means NO3 minus. ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो. नाइट्रेट बन जाएगा नाइट्रेटो. उसके बाद आएगा अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑक्सलेट. ऑक्सलेट ऑक्सलेट मीन्स C2O4 2 माइनस आयन, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्सलेटो. क्या नेम होगा, ऑक्सलेटो. सिमिलरली we can take solution oxalate, sulfate, nitrate, carbonate, acetate means CH3 COO minus. इसका नाम हो जाएगा acetato. This is acetate ion. So all these are the anionic ligands which are ending with ATE. तो ये सभी एनायनिक लिगैंड है जो कि ATE से एंड होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस
the name of some anionic ligand which are ending with ITE. इट मीन्स अब हम लोग ऐसे एनायनिक लिगैंड को डिस्कस करेंगे जो कि किससे खत्म होते हैं, ITE से. सो लिसन, लाइक नाइट्राइट. तो ITE वाले केस में हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, ITO से. फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे एनायनिक लिगैंड की नेमिंग जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो और जो ITE से खत्म होते हो, लाइक नाइट्राइट. सो इन केस ऑफ नाइट्राइट वी ऑल नो दैट इट्स फॉर्मूला इज NO2 माइनस. तो नाइट्राइट का नेमिंग करते समय हम लोग जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा तो ITE को रिप्लेस कर देंगे ITO से. किससे रिप्लेस कर देंगे, ITO से. इट मीन्स नाइट्राइट बिकम्स नाइट्राइटो. वी ऑल नो दैट दिस इज एम्बीडेंटेड लिगैंड. हमें पता है नाइट्राइट कैसा लिगैंड है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है. तो एम्बीडेंटेड लिगैंड में हमारे एक ही लिगैंड में दो एटम क्या कर सकता है, डोनर एटम की तरह वर्क कर सकता है. बट एक टाइम में एक ही डोनर एटम क्या करता है, सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. फॉर एग्जांपल अगर NO2 माइनस में नाइट्रोजन डोनर एटम, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट करके सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. देन इट्स नेम विल बी नाइट्राइटो N. तब नाइट्राइट का नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, बट डोनर एटम इज N, so it is called as nitrito N. Similarly, if donor atom is oxygen, अगर NO2 माइनस में जो हमारा डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, इट मीन्स ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. तो हमारा NO2 माइनस का नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O. नाउ देयर इज नेमिंग ऑफ सम न्यूट्रल लिगैंड्स एंड neutral ligand is written as their actual name. It means neutral ligand अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं तो इन्हें इनके एक्चुअल नेम की तरह ही लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल EN means ethylene diamine. So this is EN. EN means ethylene diamine and its formula is NH2CH2CH2 NH2. तो एथिलीन डाइअमीन को एथिलीन डाइअमीन के नेम से ही लिखा जाएगा. when these neutral ligand naming of neutral ligand when they come in coordination sphere. It means जब न्यूट्रल लिगैंड हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं तो उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, हम उनका एक्चुअल नेम लिखेंगे. आईपीएसी नेम लिखने के समय हम क्या करेंगे, इन न्यूट्रल लिगैंड्स का एक्चुअल नेम लिखेंगे. H2O को हम लिखते हैं एक्वा और इसको बोलते भी क्या है, एक्वा ही बोलते हैं. NH3 दिस इज एमाइन लिगैंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is amine. Amine contain two small m letters. It is not amine. ये amine नहीं है, ये क्या है, amine है. So it is very important. So always remember amine contain two small m letters. Now in case of PH3 it is called as phosphine. Next C5H4N. We can write it in this manner also. This is called as dipyridine or bipyridine, and dipyridine and bipyridine is written as their actual name and its representation is DIPY means dipyridine or BPY means bipyridine. So listen, this is the naming for the neutral ligands when they come in कोऑर्डिनेशन स्फीयर.
or complex ion. Now the next rule of IPAC to write the name of coordination compound, and it is special numeric prefix are used for the repetition of polydentate ligand in a complex. It means अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई पॉलीडेंटेट लिगैंड आता है तो हम लोग उसके रेपिटेशन के लिए कुछ स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं. न्यूमेरिक मीन्स नंबर, प्रीफिक्स मीन्स जो पहले लगे. सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल CuEn का होल ऑफ ट्वाइस plus 2. For this complex, you can see it's the name of this complex ion will be, first we will write the name of ligand. So the name of ligand is En, means ethylene diamine. En क्या है हमारा? ethylene diamine. So you can see एथिलीन डाइअमीन में डाई एक बार आ चुका है, और एथिलीन डाइअमीन मीन्स ईएन लिगैंड हमारा कॉम्प्लेक्स आयन में कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है. इट मीन्स 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते थे? डाई एथिलीन डाइअमीन. बट डाई वर्ड कम 2 times. So to avoid this concept, we use some special numeric prefix. It means डाई वर्ड हमारा 2 बार रिपीट कर जाता, क्योंकि एक डाई हमारा लिगैंड के नेम के अंदर आ रहा है और एक डाई हम लिगैंड के पहले यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स की तरह, न्यूमेरिक प्रीफिक्स की तरह. क्योंकि ईएन लिगैंड या एथिलीन डाइअमीन लिगैंड कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है. बट हम डाई वर्ड को 2 बार यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग कौन सा न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं? सो वी यूज स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स फॉर द रेपिटेशन ऑफ पॉलीडेंटेट लिगैंड. तो हम लोग कुछ पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के लिए स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं. अगर पॉलीडेंटेट लिगैंड हमारा 2 बार रिपीट करता है तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स होता है डाई, बट स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे? बिस. क्या यूज करेंगे? बिस. सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन विल बिकम, फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ लिगैंड. नेम ऑफ लिगैंड इज एथिलीन डाइअमीन. एंड लिसन, बट इट रिपीट 2 टाइम. लेकिन ये कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार. 2 बार के लिए हम लोग कौन सा न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं? स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स हम लगाएंगे बिस. सो बिस एथिलीन डाइअमीन. नाउ वी राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल. पहले हम लोग लिगैंड का नेम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हैं, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. कब? जब हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करेंगे. नाउ बिस एथिलीन डाइअमीन, फिर आ जाएगा हमारा कॉपर, और उसके बाद कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X प्लस En की ऑक्सीडेशन स्टेट, या En पर चार्ज होता है 0, क्योंकि ये कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल लिगैंड. सो 0 into 2 equal to total charge on the complex, and total charge on the complex is +2. It means we can write X equal to +2. इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं X equal to +2. So bis एथिलीन डाइअमीन कॉपर, और हमारा जो कॉपर पर चार्ज आया है वो कितना आया है? +2. तो +2 को हमने आपको बताया था कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या जो सेंट्रल मेटल पर चार्ज होता है उसे हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर. सो बिस
एथिलीन डाइअमीन कॉपर 2, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है इसलिए लास्ट में इसको एंड कर देंगे किसके साथ, आयन के साथ. सॉल्यूशन, द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन विल बी बिस एथिलीन डाइअमीन कॉपर 2 आयन. सॉल्यूशन, यू कैन सी, अगर हमारा कोई भी पॉलीडेंटेट लिगैंड, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइअमीन का क्या फार्मूला होता है? सो द फार्मूला ऑफ एथिलीन डाइअमीन इज NH2 CH2 CH2 NH2. This is the formula of ethylene diamine, and it has two donor atom which are nitrogen atom, and they will form coordinate bond with central metal. But in this case there are two ethylene diamine ligand, so we use special numeric prefix bis, not di. Now listen, if any polydentate ligand is repeated 3 times, then special numeric prefix used will be trace. It means जब 3 बार हमारा लिगैंड रिपीट करेगा, पॉलीडेंटेट लिगैंड जिसमें कोई न्यूमेरिक प्रीफिक्स पहले से आ चुका हो, तो हम स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे उसके रेपिटेशन के लिए? ट्रेस. 4 के लिए टेट्रा केस, 5 के लिए पेंटा केस, 6 के लिए हेक्सा केस, 7 के लिए हेप्टा केस, 8 के लिए ऑक्टा केट और 9 के लिए नोना केस और 10 के लिए डेका केस. इट मीन्स ये सारे हम लोग स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं जब कोई पॉलीडेंटेट लिगैंड किसी भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या करता है, रिपीट करता है, और वो ऐसा लिगैंड होता है जिसमें कोई न्यूमेरिक प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा ये पहले आ चुका हो, तो हम लोग कौन सा न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करेंगे? उन लिगैंड्स के रेपिटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेशल न्यूमेरिक प्रीफिक्स. नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ आईपीएसी इज द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज डन एज follows when central metal is present in complex anion. It means जब कभी भी सेंट्रल मेटल हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन में आता है तो हम लोग सेंट्रल मेटल को कुछ इस तरह से लिखते हैं. अगर आयरन है Fe, तो उसे आयरन ना लिख के हम लिखेंगे फेरेट. क्या लिखेंगे? फेरेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा सकता हूं. सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड दिस पॉइंट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. इन केस ऑफ K4FeCN6, the IPAC name of K4FeCN6, it will be, we all know that K4FeCN6 will break into 2 ions, 4K plus ion and FeCN6 4 minus ion. हमें पता है जो भी हमारा, लिसन, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो 2 आयन देता है, 4K प्लस आयन जो कि हमारा सिंपल आयन है और ये हमारा कैटायन है, और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स आयन मींस FeCN6 4 माइनस आयन. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड इट इज एन आयन. ये हमारा क्या है? एनायन है. तो हमें पता है आईपीएसी नेम लिखते समय हम लोग सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं. सो लिसन, द नेम ऑफ कैटायन विल बी पोटेशियम. बट हम कैटायन की रेपिटेशन को यहां पर नहीं शो करते. इट मींस अगर कैटायन हमारा मेटल होता है तो हम उसकी रेपिटेशन को यहां पर शो नहीं करेंगे. K4 टाइम आ रहा है, बट हम किसी भी मेटल कैटायन की रेपिटेशन को आईपीएसी में शो नहीं करते हैं. इट मींस हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे? ये कौन सा आयन है? दिस इज पोटेशियम.
This is potassium ion. Now we write the IPAC name of anion. अब हम किसका नाम लिखते हैं? IPAC नेम लिखेंगे अब हम एनायन का। तो एनायन हमारा क्या है? FeCN6 4 माइनस आयन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के नेम को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिगैंड का नेम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कौन सा लिगैंड है? यहाँ साइनाइडो लिगैंड है, हेक्सा साइनाइडो। बिकॉज लिसन, Cn माइनस लिगैंड रिपीट 6 टाइम, क्योंकि यहाँ Cn माइनस लिगैंड 6 बार रिपीट कर रहा है। Cn माइनस होता है साइनाइड लिगैंड, जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा तो ये बन जाएगा साइनाइडो। इट मींस अब हम एनायन का नेम लिखने के लिए कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयन का नेम हम वन वर्ड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेक्सा साइनाइडो, दिस इज द नेम ऑफ लिगैंड। सबसे पहले हम लिगैंड का नेम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा हेक्सा साइनाइडो। अब हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल कैपिटल एम का नेम। अब सेंट्रल मेटल हमारा क्या है? Fe मीन्स आयरन। इट मीन्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज डन एज फॉलोज व्हेन सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन। आप देख सकते हैं ये जो आयरन सेंट्रल मेटल है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन में आया है। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और जब कभी भी सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स एनायन में आएगा या ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम लोग सेंट्रल मेटल का एक्चुअल नेम ना लिख के उसमें लास्ट में क्या लगा देते हैं? 8 ATE। क्या लगा देंगे? ATE। फॉर एग्जाम्पल आयरन को लिखेंगे Fe को लिखेंगे फेरेट, जिंक को लिखेंगे जिंकेट, कॉपर को लिखेंगे क्यूप्रेट, प्लेटिनम को लिखेंगे प्लेटिनेट, Au को लिखेंगे एयूरेट, Ag को लिखेंगे अर्जेंटेट, Co को लिखेंगे कोबाल्टेट। इट मीन्स यहाँ Fe आया है कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर, तो हम लोग मेटल में 8 लगा देंगे। इट मीन्स हमारा नेम हो जाएगा मेटल का फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। FeRRATE। नाउ वी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो Fe यहां पर किस स्टेट में है? +2 स्टेट में है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे? फेरेट के बगल में हम लोग लिख देंगे 2 रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में। इट मीन्स इस कंपाउंड का IPAC नेम क्या है? सो द IPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है, ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन ये है, बट ये कंपाउंड हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए यहां आयन लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि ये क्या था? दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, या ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए यहां लास्ट में हमने क्या लिखा था? आयन। बट ये कंपाउंड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज है, क्योंकि 4K+ मीन्स 4 1 जा 4 पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रलाइज हो गया है किससे? 4 नेगेटिव चार्ज से। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कितना चार्ज आएगा? टोटल 0। इट मीन्स हमें यहाँ आयन लिखने की जरूरत नहीं है। आयन तभी लिखते हैं जब हमारे कॉम्प्लेक्स जो दिया गया कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर कोई ना कोई चार्ज हो। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो चाहे कॉम्प्लेक्स एनायन हो, अगर उस पर कोई चार्ज दिया गया है तो हमेशा हम जो नेमिंग होगी उस कॉम्प्लेक्स आयन की, तो उसके लास्ट में क्या लिख देंगे? आयन। बट दिस इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो इट्स नेम विल बी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। So all these are the rules of IPAC to write the IPAC name of any coordination compound or complex compound or any complex ion. Thank you.